Good morning, student. Today I am going to discuss with you one of the important topic that is called hypothesis. And today I am discuss with hypothesis and its type. Now, what do you understand by hypothesis? Hypothesis simple suggests the solution of the problem or so or suggests the solution of the problem is also called hypothesis. Hypothesis means suggests the solution of the problem. So here hypo and thesis combination is called hypothesis. Hypothesis means hunch. Hunch. What do you understand by hunch? In English dictionary, hunch means a theory, idea, guess, or intuitive impression that something will happen. Hypothesis is made of two words, hypo, less than, and thesis, which means less than or certain than a thesis. It is a pre-summative statement of a proposition or reasonable guess based upon the available evidence, which the researcher seeks to prove through his study. The term hypothesis, theory, conclusions occur frequently in a research literature and need some clarification. The hypothesis is precisely defined as a tentative or working proposition suggests as a solution of problem. Men make an intelligent guess about the possible solution of the problem from the preliminary study of the fact. Such guess that he makes to explain the fact about the cause of difficulty are called hypothesis. अगर हाइपोथेसिस का सिंपल में समझाया जाए, हम कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, ये काम होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा पुराना एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और पुराना एक्सपीरियंस के ऊपर जब कोई भी काम डिपेंड करता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक गेस करते हैं कि हाँ यार हो जाना चाहिए ये काम, क्योंकि ये काम के लिए ये चीज की जरूरत है, शायद मेरे पास ये चीज है, या मेरा पहले का एक्सपीरियंस है, ये इस रास्ता से जाने से मुझे ये चीज मिल जाएगा। तो जब हम कोई चीज को एजम्पशन करते हैं पुराना एक्सपीरियंस के ऊपर, उसे ही कल बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस किसके ऊपर बेस होता है, गेस के ऊपर। गेस और टेंटेटिव, गेस का ही क्या बोलते हैं, टेंटेटिव। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को किस में यूज करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। The importance of hypothesis is generally recognized more in the study which aim to make the prediction about the some outcome. मैंने बोला ना, हम कोई भी गेस करते हैं तो उसका क्या है, गेस का ये होगा या ये होगा, सही होगा या गलत होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, वही कुछ ना कुछ जो आएगा उसी क्या है, आउटकम्स होगा, प्रिडिक्शन अबाउट द सम ऑफ आउटकम। The importance of hypothesis lies in the ability to bring the direction, specify and focus to a research study. In experimental research, the research is interested in making the prediction about the outcome of the experiment or what the results are expected to show. And therefore, the role of hypothesis is considered to be the utmost important. Now, what are the characteristics and sources of hypothesis? First, we shall discuss about the characteristic. Hypothesis should be clear and precise to consider it to be a reliable. Second, if the hypothesis is relational hypothesis, then it should be stating the relationship between the variable. Hypothesis must be specific, should have scope for conducting mood test. The way of explanation of hypothesis must be very simple, and it should also be understood that the simplicity of the hypothesis is not related to its significance. Now, what are the source of hypothesis? Following are the source of hypothesis: resemblance between the phenomena, observation from past study, present experience, and from the competitor, scientific theories, general pattern that influence the thinking process of people. हमने क्या क्या हाइपोथेसिस, कोई भी हम आउटकम किसके ऊपर बेस करते हैं,
जब हमारा एक्सपीरियंस होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस होता है, या किसी दूसरे को थ्रू देते हैं, उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक क्लू बनाते हैं, एक बेस बनाते हैं। उसी बेस को क्या बोलते हैं, उसी बेस को हम क्या बोलते हैं, एक टेंटेटिव, ये आना चाहिए, वो टेंटेटिव चीज को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। कितने प्रकार का होते हैं, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जनरली तीन प्रकार के होते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस, नॉन हाइपोथेसिस, टेस्टेबल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस अगेन डिवाइडेड इनटू द 6 टाइप्स: सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कैजुअल हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। नॉन हाइपोथेसिस अगेन डिस्क्राइब एज 4 टाइप्स: simple, complex, casual, associative hypothesis. Testable hypothesis is one. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस। अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल। Null hypothesis. Null hypothesis is called statistical hypothesis because this type of hypothesis used for the statistical testing and statistical interpretation. The null hypothesis predict that there is no relationship between the independent and dependent variable. Example: nasogastric tube does not alter the body temperature. Null hypothesis उसको दूसरा तरीके से किस तरह से डिफाइन करते हैं, नॉन हाइपोथेसिस, व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द हाइपोथेसिस स्टिपुलेटिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन और ग्रुप और आउटकम्स और प्रिविलेज ऑफ द कंडीशन और फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड नॉन हाइपोथेसिस, यूजुअली रिटन एज 0। जब कोई चीज के बारे में, जैसे हम बोले मेल और फीमेल का इंटेलिजेंस पावर में डिफरेंस नहीं है, जब डिफरेंस नहीं है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एनी टू थिंग्स, तब हम क्या करेंगे, नॉल यूज करेंगे। इसलिए क्या होता है, कोई भी चीज रिसर्च में टेस्ट करने के लिए बेसिकली हम कौन सा हाइपोथेसिस यूज करते हैं, नॉल हाइपोथेसिस। इसलिए नॉल हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, स्टैटिकल टेस्टिंग और स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन। नॉल हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। अब दूसरा क्या है, alternative hypothesis. When you construct the hypothesis stipulating that there is a difference between the two situations, group, outcome, or the prevalence of a condition or phenomena, this is called alternative hypothesis and usually written as H1. अब null hypothesis में मैंने क्या किया, there is no difference between the टू सिचुएशन, ग्रुप और आउटकम। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन, ग्रुप और आउटकम। जब डिफरेंस हम शो करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव। जब हम डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस जब बोलना चाहेंगे तब क्या हो जाएगा, नॉन हाइपोथेसिस। तो अगर डिफरेंस है, अगर नहीं है, ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। इसलिए नॉन हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज यू वांट टू स्टडी द स्मोकिंग पैटर्न इन अ कम्युनिटी इन रिलेशन टू gender differential. Here gender is a male and female. If you compare male smoker with female smoker about its superiority in smoking capability, if we proceed on assumption that both smokers will equally good capable in smoking, then this assumption is termed as null hypothesis. And again, as against this, when you think the male smoker is superior than the female smoker is, or female smoker is inferior, then we starting what is termed alternative attitude. अब मैं इसको ये बताना चाहता हूं, जब मैंने किसी चीज के जानना चाहा कि लड़का या लड़की कौन ज्यादा स्मोक करना चाहता है, तो मैंने एक सिंपल सा, क्योंकि मुझे मालूम है नॉन हाइपोथेसिस क्या होता है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा बात, हमारा जो सोचना था वो सही है या गलत है।
जब हम ये सोचते हैं कि मेरा सोचना सही है या गलत है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या एजम्पशन करेंगे, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द स्मोकिंग कैपेबिलिटी बिटवीन द मेल एंड फीमेल। जब हम करेंगे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्मोकिंग कैपेबिलिटी अमंग द मेल एंड फीमेल, तब ये क्या हो जाएगा, नन। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से करेंगे कि मेल इज अ मोर सुपीरियर देन द फीमेल इन स्मोकिंग कैपेबिलिटी और फीमेल इज मोर सुपीरियर देन द मेल इन स्मोकिंग कैपेबिलिटी, देन ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइदर मेल या फीमेल को बड़ा बना रहे हैं। The choice of null hypothesis. The following considerations are usually kept in a view. Alternative hypothesis usually one which wishes to prove the proof, and null hypothesis which one wishes to disprove. यहाँ ये कहना चाहता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है कि जो रिसर्चर है वो प्रूव करना चाहता है, व्हेयरएज नल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस है रिसर्चर जो उसको डिस्प्रूव करना चाहता था, मतलब मैंने जो सोचा वो गलत है। Thus the null hypothesis represents the hypothesis we are trying to reject. अगर हम null hypothesis का हम इस चीज को गलत करना चाहते हैं तो किसका मतलब क्या हुआ, मैं इस चीज को रिजेक्ट करना चाहते हैं। वही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। If the rejection of certain hypothesis when it is actually true involve the great leaps, it is taken as null hypothesis because then the probability of rejecting it when it is true is a which is chosen a very small. अगर आप एक बार सोचिए, अगर कोई चीज आपको मालूम हो कि इस चीज को हम सही है, लेकिन अगर हम गलत सोचे उस चीज के बारे में, तो हमारे लिए क्या है, ज्यादा घातक है एज कंपेयर टू गलत चीज को हम सही सोचने से। अच्छा, क्योंकि सही चीज को गलत बनाने के लिए हमें क्या होता है, बहुत सारा अनुभव की जरूरत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन हाइपोथेसिस शुड बी स्पेसिफिक hypothesis, that is, it should not state about or approximately certain value. Generally in hypothesis testing we proceed on the basis of null hypothesis, keeping the alternative hypothesis in view. Why so? The answer is that on the assumption that null hypothesis is true, one can assign the possibility of different possible sample result, but this cannot be done if we proceed with alternative hypothesis. Hence, the use of null hypothesis is quite frequent. जैसे मैं एग्जांपल हो, मैं किसी जगह जाके ये सोचूं कि यहाँ पे जितने रहने वाले आदमी गोरे हैं, तो मुझे काला प्रूव करने में कितने बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं किसी एक आदमी को बोलूं यहाँ पे रहने वाले आदमी कम काले होते हैं, तो मुझे गोरा प्रूव करने की क्या होगा, आसान होगा। अब मैं डिफरेंस कर रहा हूं नॉन हाइपोथेसिस और रिसर्च हाइपोथेसिस वर्सेस नॉन हाइपोथेसिस। हमने पहले ही डिस्कस किया था रिसर्च हाइपोथेसिस कितना प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कैजुअल, एसोसिएटिव, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। एंड नॉन हाइपोथेसिस कितना प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कैजुअल एंड एसोसिएटिव। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल रिसर्च हाइपोथेसिस। It predicts that there exists a relationship between the independent and dependent variable. अगर रिसर्च हाइपोथेसिस है तो सिंपल क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसी रिसर्च हाइपोथेसिस को अगर नल बनाना हो तो सिंपल लिखेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है, स्मोकिंग लीड टू कैंसर, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। सिंपल हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। सिमिलरली जब हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस में इसी चीज को डालेंगे तो स्मोकिंग
may or may not be lead to the cancer. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब हम टू वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल को रिलेशनशिप में डालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता था, दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को डालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मैं एक एग्जांपल देता हूं। Global warming caused the iceberg to melt, which caused the major changes in weather pattern. High ratio of unemployment, poverty, illiteracy lead to the crime. अगर हाई रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक वेरिएबल हो गया, प्रोवर्टी दूसरा वेरिएबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल क्या करेंगे, क्राइम को ज्यादा करेंगे। जब तीन वेरिएबल आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर इसी चीज को अगर हम किस में डालेंगे, नॉन में डालेंगे तो सिंपल क्या डालेंगे, सिंपल ऐड करेंगे, देयर इज अ नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल, स्मोकिंग, ड्रग्स, टोबैको, एल्कोहलिज्म हैव नो रिलेशनशिप इन द ऑकरेंस ऑफ मलेरिया, मॉम और चिकन पॉक्स। सिंपल क्या डालेंगे, नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैजुअल। It predicts the cause and effect relationship or interaction between the independent and dependent variable. The hypothesis predicts the effect of independent variable on dependent variable. Example, only post-operative ambulance will lead to the promote recovery. That is casual. अब casual को अगर null में डालते हैं तो simple क्या करेंगे, it predict is no cause and effect or interaction relationship between the independent and dependent variable. यहाँ पे मैंने एग्जांपल में क्या लिखा है, only post operative ambulation will lead to promote the recovery, इसी को नॉन में डालेंगे तो only post of ambulance will not necessarily lead to the promote of recovery. Next hypothesis is the associative hypothesis. It predicts that unassociative relationship between the independent and dependent variable. When there is a non, it predicts that there is a non-associative relationship between the independent and dependent. Example, when there is a change in any one of the variable, change occur in other variable, means it may be positive or negative. मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ एसोसिएटिव का। Increased doses in antibiotic will not reduce the body temperature. अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो क्या होता है कि अगर आपका जैसे फीवर हो गया तो आपको फीवर क्या होगा, अगर एंटीबायोटिक लोगे तो फीवर कम जाएगा या ज्यादा होगा। कभी कभी क्या होगा, फीवर का एंटीबायोटिक का फीवर पे इफेक्ट नहीं, जब एंटीबायोटिक का फीवर पे इफेक्ट न हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। अगर ज्यादा या कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल। It predicts the direction of the relationship between the independent and dependent variable. Example, high quality of teacher education will lead to high quality of teaching learning process. देखिए, एक अच्छा टीचर रहेगा तो स्टूडेंट क्या होगा, अच्छा होगा। अगर एक स्टूडेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, अच्छा होगा। तो उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन शो करता है, एक अच्छा काम करने से उसका फल अच्छा मिलेगा। नॉन डायरेक्शन, इट प्रेडिक्ट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जांपल, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट लर्निंग,
कभी कभी आपने देखा है एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, स्टूडेंट को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट इन लर्निंग, मतलब टीचर की तरह बनना या आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी वही टीचर स्टूडेंट का रिलेशन क्या करते हैं, स्टूडेंट को डिमोटिवेट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, एक क्लासरूम में क्या होगा, एक मैथ्स टीचर है, वो स्टूडेंट के साथ अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा। और वही स्टूडेंट के साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। लेकिन दोनों साथ में ना टीचर 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 स्टूडेंट को रेस्पेक्ट करेगा, स्टूडेंट भी टीचर रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस क्या होगा, एजम्पशन के साथ हो जाएगा। एक दूसरे का अच्छा व्यवहार करने से दोनों चीज अच्छा करेगा। अगर टीचर अच्छा व्यवहार करता है, स्टूडेंट गलत करता है, अगर स्टूडेंट अच्छा करता है, टीचर गलत करता है, उसमें क्या होगा, तो गलत होगा। Next hypothesis is called empirical hypothesis. Empirical hypothesis, which means it is based on the evidence. एविडेंस अनुसार इसको होना चाहिए। एविडेंस किसके लिए चाहिए, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी रिसर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए, डाटा चाहिए, माने एविडेंस चाहिए। बेसिकली इन साइंटिफिक मेथड द वर्ड एम्पिरिकल refers to the use of working hypothesis that can be tested using the observation and experiment। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों केस में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट दोनों केस में क्या होगा, आपका डाटा जरूरत पड़ेगा। वो डाटा क्या होना, डाटा ही आपका क्या होगा, एविडेंस हो जाएगा। तो इंपेरिकल हाइपोथेसिस किसके ऊपर बेस्ड होता है, एविडेंस को। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग हाइपोथेसिस। It is only assumption during the formulation phase, but when it is tested, it is no longer just an idea or notation। जब आपके पास कोई चीज का डाटा आ जाए, डाटा आने से पहले क्या हो जाएगा, वो एजम्पशन होगा। लेकिन जब डाटा आ जाएगा तो वो एजम्पशन नहीं होगा, एक फैक्ट बन जाएगा। whether that fact is true or false, it is actually going through the some changes around those independent variable। Example, कॉटन क्लोथ आर बेटर फॉर द समर देन द वेलवेट क्लॉथ। आप अगर आप गर्मी है तो आप सब आदमी से पूछने जाओगे कि आपका कौन सा कपड़ा गर्मी में पहनने के लिए आएगा, तो क्या बोलेंगे, कॉटन ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू वेलवेट। तो आपका डाटा क्या होगा, कॉटन क्लोथ का ज्यादा आएगा। इंपेरिकल डाटा इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे टेस्टेबल हाइपोथेसिस। टेस्टेबल हाइपोथेसिस इट प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड these variable are tested or measurable। Example, increase in patient body temperature cause increase in patient pulse। अगर टेस्ट करना है, जैसे बुखार इंसान को बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या करेंगे, हम थर्मामीटर से डालेंगे, थर्मामीटर डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद हम जब थर्मामीटर चेक करेंगे तो हमें मालूम चल रहा है कि थर्मामीटर में टेम्परेचर ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब उसका पेशेंट का पल्स रेट भी क्या होगा, ऑटोमेटिक ही ज्यादा हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेशर नापेंगे। तो प्रेशर क्या हो सकता है, कभी कभी कम हो सकता है नॉर्मल से, या कभी कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होंगे, मेजरेबल होंगे, इसलिए बोलेंगे टेस्टेबल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है लॉजिकल हाइपोथेसिस। As the name suggests, it is verified as logically। The process of verification involves the agreement, disagreement, difference of opinion। जैसे hypothesis, animal cannot survive without water। यहाँ पे हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है, एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो लॉजिक क्या होगा, हमें लॉजिक ये मालूम है कि एज अ लिविंग बींग्स हमें पानी की जरूरत होता है। तो लॉजिकल वेरिफिकेशन क्या है, ऑल लिविंग बींग्स नीड अ वाटर। नेक्स्ट हाइपोथेसिस है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। तो स्टेटमेंट कुड बी लॉजिकल और इलॉजिकल, बट इट स्टैटिक्स वेरीफाई, it become a statistical hypothesis। For example, vitamin C is good for skin। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए,
जब भी हम स्टेटमेंट या एजम्पशन लेते हैं, लॉजिक हो या इलॉजिकल हो, लेकिन प्रूव करने के बाद क्या हो जाता है, प्रूव करेंगे। प्रूव करने का मतलब उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस।